Jai Hind everyone, a very good evening to all of you. Am I audible to all of you? Audible and visible? Audible, sir. Jain, sir. Jai Hind everyone. I would request all of you to kindly put your cameras on and keep your mic on sir. mute. Jai Hind everyone, Jai Hind. Jain sir. Jai Hind. Jain, sir. Jai. So I will require any one of you who has joined the Telegram group. Our team had collated a few of the questions. So I will firstly take those questions one by one. जो सवाल पहले पूछ चुके हैं ना ग्रुप में डाले हुए हैं, we'll try to answer those questions first, and then I will take your queries. I think one thing there that you need to ask very specific questions. आप generalized questions मत पूछिए अभी. Today we will focus to taking the questions that are related to number one about the examination that is going to happen. और जॉब में क्या होता है, ट्रेनिंग कैसी होती है, वहां बंदूक चलाने को मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सवाल हम कृपया करके अवॉइड करेंगे आज. ठीक है, वी विल फोकस मोस्टली ऑन the technical aspects. I'm waiting for all of you to keep your cameras on, because otherwise it would be I should know who I'm talking to. ठीक है, so who goes first? I think we will take the first question. I'll take the questions first, and then I'll try to address other queries that come along. So anyone who wants to go with the first question, kindly ask your question. Raise your hand, and I'll just. Jain sir, myself Abhishek Kumar Gupta sir. Abhishek, just a moment. Abhishek. Okay, Abhishek, please go ahead with your question. Sir, my question is, I am preparing for UPSC Civil Services since 1 year. I have cleared Be a bit loud. Can you be a bit loud? So before you start, one more thing I want to tell you, all of you, that wherever you go, you make your presence felt. You don't need to be unnecessarily loud, but then you shouldn't have to, make the listener ask you to repeat your question or repeat whatever you said again. Because the preparation for the interview, I believe, starts today. Not even today. Ever since you started your education, your preparation for your interviews, whether it be civil services or whatever you do in life, it starts, the moment whatever activity you're doing, do as if your life depends on that activity. So I want a lot of energy in the group here. I want bright young bright chaps, proud young citizens, as I call. We are all proud young citizens of this great nation. And in 2025, if I talk about, we are at the cusp of at inflection point in human history. Whatever you do today, that has the capacity to influence the future of human race. हमें लगता है हमारे एक्शंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, पर छोटे से छोटे एक्शन का भी बहुत सिग्निफिकेंस है. So a little story to start with to set the tone for the session. I usually tell this story to candidates. So there was this fire in the jungle. You must have heard about it. जंगल में एक बार आग लग गई. ठीक है, तो सभी जानवर क्या करेंगे, जंगल से भागेंगे नदी की तरफ. जंगल के बाहर जो नदी है, they will run towards that river. सभी जानवर भाग रहे हैं, शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, बंदर, सब भाग रहे हैं. इसी बीच में क्या हो रहा है, एक छोटी सी चिड़िया है. इट इज रनिंग टुवर्ड्स द फायर. वो क्या कर रही है, अपनी चोंच में पानी भर के, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द रिवर, पिकिंग सम वाटर एंड ट्राइंग टू डाउज द फायर. वो उस आग को बुझाने का प्रयास कर रही है. अब आपको भी अचंभा लग रहा होगा, और जो जानवर उस चिड़िया को देख रहे थे उनको भी यही लग रहा है कि चिड़िया का दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई है, खुद जल जाएगी, इतनी चोंच से जंगल की आग कैसे बुझेगी. तो सभी जानवर देख रहे हैं. तो बीच में जब लोमड़ी से रहा नहीं गया, एंड द फॉक्स काइंड ऑफ आस्क्ड
the sparrow, the small little bird, कि चिड़िया तुम्हारी चोंच से आग तो बुझने वाली नहीं है, तो why are you wasting your time and risking your life? तो जो चिड़िया ने जवाब दिया वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी को उस नजरिए से अवश्य जिए। चिड़िया ने कहा, मुझे पता है मेरी चोंच में जो पानी है उससे जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन लिसन, ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है, लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, ना कि डर के भाग जाने वालों में। तो जीवन में हमें हमारा हर एक चीज जो आप करते हैं वो एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए अपने बेस्ट सेल्फ को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है? आई एम श्योर द टोन एंड द टेनर फॉर द कॉन्वर्सेशन इज नाउ सेट, एंड वी विल नाउ गो टू अभिषेक टू ask his question. So Abhishek, go ahead now. Okay, sorry for that disturbance, sir. No worries. Sir, my doubt was I am preparing for civil services since 1 year, sir. I've cleared AFCAT once, and my actually the course you are offering, will that be in alignment with the CSAT paper, sir? Because I have very calculated time to give to this IB exam, sir. So please, can you solve my this doubt, देखिए, sir? अभी अभिषेक और बाकी कैंडिडेट्स को भी मैं ये कहूंगा कि आप ना स्पेसिफिक डाउट्स, हम यहाँ पे हम स्पेसिफिक डाउट्स पूछना, बाकी कैंडिडेट का टाइम वेस्ट करना होगा। तो हम वो सवाल पहले पूछेंगे जो सभी जो कैंडिडेट्स आपके दोस्त बैठे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके हम जो जनरलाइज सबके सवालों सबके जो प्रॉब्लम्स का हल करें, वो हम ज्यादा कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अबाउट द एग्जाम, ठीक है, एग्जाम को लेके स्पेसिफिक। सो आई थिंक द फर्स्ट क्वेरी दैट आई रिसीव्ड वाज अबाउट द हाइट, अबाउट द हाइट क्राइटेरिया, किस किस को हाइट का इशू था। तो हाइट को लेके देखिए, देयर इज नो सेट प्रेसिडेंट। मेरे बैच में भी देयर वर कैंडिडेट्स हु वर लेस देन 160 सेंटीमीटर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो मुझे लगता है अगर आप 160 या उस आपकी हाइट 160 के तकरीबन है, तो मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है? तो हाइट के परस्पेक्टिव से ये एक मैं और भी अपडेट्स आपको दूंगा इस पे, बट दैट इज द बेयर मिनिमम कि अराउंड 160 एंड देयर अबाउट्स। आई थिंक नॉर्थ ईस्टर्न पीपल के लिए देयर इज इवन ग्रेटर रिलैक्सेशन, तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आई थिंक आई साइट को लेके भी बहुत सवाल आए हैं कि सर मैं स्पेक्स पहनता हूं, मेरे को ये दिक्कत है, तो शुड आई अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। देख, और एक और जो सवाल आ रहा है कि सर 2 महीने या 2.5 महीने में एग्जाम होगा, तो क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा, क्या ये टाइम सफिशिएंट है? तो कोई आप में से कोई इस सवाल का जवाब देना चाहेगा कि मुझे उस कैंडिडेट को क्या बोलना चाहिए था, कि जो पूछ रहा कि सर 2 महीने सफिशिएंट टाइम है क्या एग्जाम क्रैक करने के लिए? व्हाट शुड आई आंसर टू दैट कैंडिडेट? यस, एनीवन? सी, जिसको भी सवाल पूछना है वो अपने को अनम्यूट करके, और ये इट इज नॉट अ, आई थिंक इट इज बेटर टू आस्क योर क्वेश्चंस पर्सनली, राइट? आई थिंक नमस्ते अंकल। नमस्ते। कैसे? no point typing your नहीं questions नहीं there, okay? I खाना would खाते suggest हम you to ask your questions one by one. भोजनालय। अच्छा, Please unmute कब ना yourself. सारे फ्लाइट Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes. Rushikesh here. Rishikesh. So my question is that actually I'm preparing for SSC CGL, and throughout the Okay. SSC CGL and IB ACIU too, when I differentiated the exam, means paper, so I found that in IB ACIU too we are getting lengthy questions, Hmm. whereas in SSC CGL it's much minimum. My जो लोग I think others can mute their audio. Nishant Rajput, I think, can you mute yourself? पहले क्या 3 लोग रहते थे हम लोग, जब आप इंदौर में थे, खाने का मिल जाता है। बहुत अच्छा। मैंने ऐसे मिल जाता है। Okay. I think please maintain the decorum of the session. Yes. So please ask uh, your question, Rishikesh. Yes, sir. So I differentiated the SSC CGL and IB ACIO too. I Okay. got that we are getting lengthy questions in IB, whereas my practice is
on much minimum question set, means questioning uh, I get level. your question. I get your question. That's what. Yeah. Okay, So how to ठीक है. एसएससी overcome और that? आईबी का मतलब आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है. और किसी का इससे रिलेटेड कुछ सवाल है? आई ट्राई टू क्लब 2 to 3 क्वेश्चन, 2-3 सवाल लेके फिर उनका इकट्ठे आंसर करने की कोशिश करूँ, ठीक है. और किसी का कोई सवाल है, क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ? Hello. Good evening, sir. This is Jashwant. सॉरी, प्लीज वन बाय वन. या प्लीज गो अहेड. Sir, good evening, sir. This is Jashwant. सॉरी, जसवंत. This is ओके Jashwant. ओके जसवंत, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. So, what is the level of the questions that we can expect in IB? व्हाट इज द Standard of the questions that we can expect in IB exam? स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन? ओके, Yes, sir. फाइन. Hello, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. Hello. Am I या audible? प्लीज गो अहेड. Yes, please ask your Yes, question. good evening, sir. Actually, as I was preparing for UPSC CSE, so earlier when I attempted the paper, तो मुझे करंट अफेयर और जीएस का तो मतलब क्राइटेरिया या जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे लगे. बट जब मैथ्स की बारी आती है सर, आई वुड नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट मच, क्योंकि 1 घंटे का ही टाइम है एंड यूपीएससी में वी आर प्रिपेयर्ड फॉर 2 आवर. तो मतलब कैसे पता चले कि जो मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो कौन से अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि हम 100 के 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. सो द Right. राइट स्ट्रेटेजी. ठीक है. सो हमारे पास अभी 3 क्वेश्चन आ चुके हैं. एक तो Good evening, sir. एसएससी और या प्लीज Good evening, sir. Ravinder, I am Ravinder Singh. Sir, sir, my doubt is ki, are you launching any batch for this examination, Yes. sir? Yes. We are, our batch is starting next week. Next week we are starting the batch and उसके ऊपर भी सवाल लेंगे about the batch. Okay. So 4 questions. We'll stop here. I'll try to answer these 4 questions and then we will move on to the next set of questions. ठीक है. We'll try to keep it concise and try to ताकि हम कम टाइम में आपके ज्यादा क्वेरीज का आंसर कर पाए. तो सबसे पहले I think you asked about Rishikesh. I think asked about SSC and IB question, right? देखिए, those of you who are preparing for SSC, उसमें क्या है, आपको थोड़ा सा फैक्चुअल लेवल पे सवाल पूछे जाते हैं. एंड व्हेन देयर अनदर कैंडिडेट आस्क्ड अबाउट सिविल सर्विसेज में आप यू आर एबल टू मैनेज, बट हियर यू आर फाइंडिंग अ लिटिल चैलेंजिंग. तो देखिए, सिविल सर्विसेज का क्या है, सिविल सर्विसेज में अगर आपने तैयारी की है तो आपको जीएस, दिस एग्जाम इज मोर लाइक सिविल सर्विसेज. इसमें सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट्स को थोड़ा हल्का सा एडवांटेज हो सकता है, पर ऐसा नहीं क्योंकि उनको मैथमेटिक्स में डिसएडवांटेज हो सकता है, जैसे आपने कहा जिसका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं. और जो एसएससी कैंडिडेट्स हैं, बैंकिंग एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, तो ये सभी कैंडिडेट्स के लिए दिस एग्जाम इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी. मैं आपको ये बताऊं कि 3700 वैकेंसीज आपको लॉटरी लग गई है इस बार आपकी. अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है आपका हो जाएगा, क्योंकि इतनी वैकेंसीज शायद ही कभी आई होंगी. अराउंड 700-800 या 500 के करीब वैकेंसीज आती थी. लास्ट ईयर भी 900 वैकेंसीज थी. तो आपको उन चीजों पे फोकस नहीं करना है कि मेरा मैथ कमजोर है. जो एसएससी का कैंडिडेट है उसका भी एक बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन है. आप जो भी सिंसियर, आप यहाँ पे जो बच्चे आप ऐड हुए हो आज, यू आर अटेंडिंग द सेशन, यू ऑल हैव अ बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन. यू हैव ग्राइंडेड योरसेल्फ. अब एसएससी में आपने एक नॉच लेवल तक प्रिपरेशन की है, उसको एक नॉच ऊपर लेके जाना है. पर आपको मैथमेटिक्स में एडवांटेज है. आई थिंक ऋषिकेश ने पूछा था कि उसका वो है, तो मैथमेटिक्स आपका अच्छा है तो वहां पे आप ले जाएंगे. आपके पास अगर 100 सवाल है, यू हैव 100 क्वेश्चंस. 20 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम करंट अफेयर्स, जिसमें आपको थोड़ा फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल दोनों को लेके चलना है. आपको जनरल स्टडीज के सवाल हैं, उसमें भी 20 ही सवाल है. तो उन 20 क्वेश्चंस में आप अपनी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, तो दैट ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. वो भी एक पर्सपेक्टिव आपको वहां समझना है. ठीक है. कमिंग टू द लॉजिकल रीजनिंग, यू हैव लॉजिकल रीजनिंग ऑल्सो एंड इंग्लिश. तो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग तो आपका काफी आसान ही हो जाएगा. मैथमेटिक्स में थोड़ा सा मुझे लगता है आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है. जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, उनको ये कोशिश करनी है कि डरना नहीं है मैथमेटिक्स से. आपको सिर्फ 100 सवाल अटेम्प्ट करने हैं अगर, तो उन 100 सवालों में यू हैव टू बी केयरफुल. अब फॉर एग्जांपल किसी ने अगर आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम दिया होगा, एनीवन ऑफ यू हैज गिवन आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, उसमें क्या होता है, देयर आर 80 क्वेश्चंस ऑफ जीएस. जीएस के 80 सवाल हैं, पर वो 80 सवाल आप केवल 8 से 10 मिनट में कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है. ठीक है. तो स्ट्रैटेजी कैसे, पेपर पढ़ाई आप कैसे करेंगे और अटेम्प्ट कैसे करेंगे, वो बड़ा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता.
आप सिविल सर्विसेज में भी जाते हो, आप 1 साल पढ़ के जाओ, द एग्जामिनर विल स्टम्प यू, ही विल आस्क क्वेश्चंस दैट मे नॉट बी, यू फील कि यार ये तो पढ़े में से आया नहीं, मेरा टाइम वेस्ट हुआ। तो मैं ये कहूंगा आपको थोड़ा सा ब्रॉड बेस तैयारी करनी है, यू हैव टू ब्रॉड बेस योर अप्रोच। ये तो हम अभी टियर 1 की बात करें, टियर 2 का भी मैं बताऊंगा, इंटरव्यू के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। कट ऑफ हाई जाता है, कट ऑफ 60-70 के अराउंड होता है मोस्टली, अराउंड 60-65। इस बार शायद, अब देखिए पोस्ट ज्यादा है तो थोड़ा ही कम होगा। आपको कोशिश करनी है कि आपको 70 के अराउंड मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। 70 के करीब अगर आप मार्क्स ला पाते हैं, आपके लिए दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो आपने जैसे 20, आपको इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, जीएस और आपका जो करंट अफेयर्स है, आप ये 40 मिनट्स में, 35-40 मिनट्स में आप खत्म कीजिए। ट्राई टू फिनिश इट इन 35-40 मिनट्स। और लास्ट के 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में जितना ज्यादा से ज्यादा आपका मैथ्स आप कर सकते हैं उतना कीजिए। जनरली आप कैंडिडेट्स जो सी सैट देते हैं, यूपीएससी का सी सैट में, उसमें भी लोग क्या करते हैं कि अपना मैथमेटिक्स से शुरू कर देते हैं। तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन में टेंडेंसी ये होती है, जैसे किसी ने पूछा कि कौन सा सवाल हम मैथ्स में छोड़े या कौन सा नहीं छोड़े। देखिए वो तो प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा, आप जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्किल सेट एनहांस होता है। तो इसमें प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, दीज थिंग्स आर वेरी क्रिटिकल है कि आपको एक सही अप्रोच लेके चलना है। सबसे पहले चीज तो मैं एक चीज बताऊंगा आपको, पढ़ाई अपनी जगह, पढ़ाई से एग्जाम क्लियर नहीं होते। पढ़ाई से, सिर्फ पढ़ाई इसका मतलब ये नहीं यू गो पार्टिंग ऑल डे, दैट्स नॉट द पॉइंट। पढ़ाई से एग्जाम क्लियर नहीं होते, ये बात आप समझ लीजिए। और जो मार्केट में या एक हवा क्रिएट किया जाता है ना, आप आईएएस की भी बात कीजिए, सिविल सर्विसेज की भी बात करें, और भी एग्जाम्स की बात करिए, अगर आपके माइंडसेट एक स्ट्रांग है, आप एक सही अप्रोच से आगे चलते हैं, तो पढ़ाई तो बड़ी आसान चीज है। पढ़ाई करना, 8 घंटे बैठ के पढ़ना मुश्किल नहीं है। आपकी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, आपका फोकस क्लियर नहीं है। अगर अभी 2 महीने बाद एग्जाम है, अभी आप जितने भी यहाँ बच्चे यहाँ बैठे, आप में से 10% भी सीरियसली नहीं पढ़ेंगे, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। 10% भी आप 100% सीरियसनेस से नहीं पढ़ पाओगे, और वही 10% सिलेक्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? अभी एग्जाम कब होगा? अराउंड कपल ऑफ मंथ्स में एग्जाम हो जाएगा। अभी लेट्स अज्यूम, अभी आई एम नॉट गोइंग इनटू स्पेक। एक और चीज, आप मार्केट में हो रही स्पेक्यूलेशन में मत जाइए। कोचिंग सेंटर्स का होता है कि दे हैव टू हाइप थिंग्स, दे हैव टू क्रिएट अ हुला बलू अराउंड थिंग्स। और एक और चीज यहाँ पे, आई एम नॉट रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई एम जस्ट इंटरेक्टिंग विद यू गाइस, आई एम वांटिंग टू हेल्प यू, गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। बट आई वांट वॉरियर्स, आई वांट पीपल हु हैव द राइट माइंडसेट, जिनको एक सही तरह से मतलब कमिटमेंट। नित्या, आई थिंक, ओके, आई ट्राई टू speak in English. Most of you are comfortable with English, so that everyone is able to understand, because we have Yes, sir. candidates from the southern part of the country as well who may not be very well versed with Hindi. So we'll try to mix. जहाँ पे किसी को, wherever anyone finds a reference, I'll try to keep it more in English and little bit in Hindi as well. So try to understand this thing. We have to approach the exam in a manner that it becomes a part of our life. डोंट पुट इट ऑन अ पेडेस्टल। सबसे पहली बात, अब नोटिफिकेशन आ चुकी है, आपके पेरेंट्स भी बोल रहे होंगे, फ्रेंड्स माइट बी टेलिंग यू, पेरेंट्स माइट बी टेलिंग यू, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। yes, this is your opportunity, indeed it is, and nobody is denying that fact. But what one thing that will make you difference, abhi I'll just take an example of the cricket match that just concluded, India versus England at Lords. Skill set, there is no difference. People who are playing at the international level, उनका स्किल सेट मोस्टली इज वेरी गुड। ठीक है, देयर स्किल सेट इज मोस्टली गुड। व्हाट होल्ड्स द की इज टेम्परामेंट, वेदर यू हैव प्रैक्टिस इनफ, वेदर यू हैव द टेम्परामेंट। तो वो टेम्परामेंट आप कैसे बिल्ड करेंगे? दैट टेम्परामेंट विल बी बिल्ड बाय वन, सैम मानेकशॉ सर ने एक बात कही थी एक बार, ही सेड वन थिंग, मोस्ट पीपल लैक कॉन्फिडेंस बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रोफेशनल कंपीटेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा? व्हेन विल यू फील कॉन्फिडेंट? व्हेन अ टीचर आस्क यू अ क्वेश्चन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आई थिंक दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल एक्चुअली, आई वुडंट। Please unmute, mute yourself, whoever is not, doesn't want to ask a question. Okay? So Field Marshal Sam Manekshaw said this thing, that
We need to develop professional competence. Professional competence is very important. For you, what is professional competence? You are candidates, you're preparing for various government examinations, and you're not, working somewhere. Most of you are not working. So even still, we are not giving our 100%. क्या आप सब अपना 100% दे रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि हम सब दे रहे हैं. We are not giving 100%. If we're not giving 100%, how can we expect Amritdhari issue as well? Okay, I think there is in government examination there is no restriction of any such thing. Somebody asked this question about whether an Amritdhari Sikh can join the organization or for that matter any other religious sect. There is no such foundation. अपने दिमाग से ये notions निकाल दीजिए सब लोग. India is a country, and IB as an organization, I'll tell you, it is one of the wonderful, the most magnificent organizations, one of the most honest organizations. We don't come in the limelight and take the credit when we do operations, like many people do. We work behind the shadows. We just do our work and we just keep shut. That's what we do. So if you want to come in this organization also, just अपने mind से कुछ भी biases निकाल दीजिए, किसी भी तरह के, religious biases, caste biases, language biases. This is one country, India. We're the proud citizens of this great country, and once you imbibe that spirit in you, then only you should prepare. Otherwise, see, मेरे लिए country comes first always and every time. Desh always comes first. I write bold and capital में Indian only, and all of you must imbibe that spirit. We are all, proud citizens of this country. आप एक एग्जाम को ये मत सोचो यार मेरे को एक ऑफिसर बनना आईबी में. नहीं, ये गलत अप्रोच है जिंदगी को जीने की. This is not the approach that you want to have. Your approach should be that my existence on this planet should make my country a better country when I leave this world. आप दुनिया से जाने के बाद एक देश बेहतर होना चाहिए. आईबी में जाइए, किसी और जॉब में जाइए, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कंट्रीब्यूशन का. फिर आपको पढ़ाई ऐसे करोगे, आप 24 घंटे भी आपको कम लगेंगे. फिर आप बहुत जबरदस्त पढ़ोगे. फिर आपको ये भूल जाएगा कि यार एग्जाम टफ है, मैथमेटिक्स नहीं आता. आप रास्ता निकालोगे. We'll find a way. We'll find the ways out. That's the things that are required. ठीक है. तो जहां तक जिसने एसएससी और आईबी का वो पूछा था और क्या डिफरेंस है, जो भी है हम उसको करेंगे. We will work on that. And as far as the standard of questions are decent enough. अगर आप 2 महीने अच्छे से पढ़ेंगे, if you prepare good enough, then I think you will be able to crack this. And about the batch, we're probably launching next week. ठीक है, उसकी details आप groups में आपको मिल जाएंगी. Yeah. So yeah, please, anyone who wants to ask a question, Manvendra, you raised a hand. Yes, please go ahead. Whoever wants to ask a question can raise his hand and ask the question. Yes, Manvendra, please go ahead. सर कम आती है क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता सर मैं. Be a bit loud. सर मेरे क्वेश्चन अटेम्प्ट में थोड़ी कम हो पा रही है, स्पीड थोड़ी कम आ रही है सर. क्या आ रहा है? स्पीड कम आ रही है सर अर्थमेटिक में. ठीक है. Okay, we'll take another question. Issue of speed in the examination. ठीक है. Next, whoever wants to ask a question. क्वेश्चन लेंगे सर. Jai Hind, sir. I'm Krish. I'll answer this one. Yeah, please. Yeah, Krish. Hi, Krish. How are you? Fine, sir. As I'm a defense aspirant, sir, I used to participate in AFCAT, CDS, and CAPF exam. And in those exams, I used to get enough time for attempting a maximum number of questions. As in the IB, I saw that there are 100 questions in just 1 hour. So how do we tackle those? Okay. Again, your question is about the speed and managing that. Yes, sir. Yeah, you have to understand कि इसमें आपको एक तो आपको जो GS मैंने पहले भी बताया. देखिए, whoever wants to ask a question, don't type in the comment section. It will be difficult for me to read. One by one, ask questions. Okay, that's why that's the only purpose of coming live. I want to interact with you and ask as many questions. Anyways, so please understand this thing. आपको एग्जाम में स्ट्रेटेजी बनानी है कि कौन से सेक्शंस को कैसे टैकल करना है. ठीक है. पहली चीज आपको ये समझना है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है. मतलब उसमें ऑनेस्ट स्वॉट एनालिसिस समझते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट. अपना स्ट्रेंथ क्या है. किसी का स्ट्रेंथ मैथ हो सकता है. ठीक है, एनीवन कैन हैव अ मैथ स्ट्रेंथ. किसी का जीएस स्ट्रेंथ हो सकता है. किसी का करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है.
तो you have to understand what is your strength. अब somebody who has strength in mathematics, he should try to attempt out of 20 as many as possible. As many as possible. उससे क्या होगा, आपको नंबर लाने हैं 70, वो नंबर आप लाओ, जीएस से लेके आओ, मैथ से लेके आओ, एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू डिफरेंशिएट कि इसने मैथ्स में नंबर नहीं लाए, इसको मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा, वैसा कुछ नहीं. आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ, लाइक क्रिश, व्हाट इज योर, आर यू गुड इन मैथ्स? Average, I would say, sir. Average, no. So see, we need only, nobody's average actually. We are all unique in our own ways. Never use this terminology. You are unique, you are born unique, you have a great potential to create history in this world. So anyways, coming back to the point. So the thing is, you have to first do your own analysis. Then you work on the competencies. अब अगर आप next 2 months में आप अपने GS को subjects हैं, उन पे आप strengthen करते हो, you gradually work on those subjects. ठीक है, आप current affairs के ऊपर आप पिछले 1 साल का current affairs बहुत अच्छे से कर लेते हो. In these 40 questions, I would expect you to answer 30 to 35 correctly. Let's keep it at 30. अगर आप 30 सवाल यहाँ पे कर लेते हो, फिर नेक्स्ट 60 में से आपको अराउंड 40 लाने हैं. दैट इज वेरी मच पॉसिबल. इंग्लिश में तो 20 on 20 होना चाहिए और 5 से 7 मिनट में इंग्लिश खत्म होनी चाहिए. इंग्लिश को 5 to 7 मिनट्स में यू शुड बी एबल टू फिनिश, 5-7 मिनट में. उसके लिए जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जिसको थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो प्रैक्टिस करेगा, कुछ बेसिक्स को रिवाइज करेगा, ताकि इतनी मुश्किल नहीं आएगी इंग्लिश. इफ यू हैव अ गुड कमांड ओवर स्पोकन इंग्लिश, स्कूल में अच्छे से पढ़ा है अगर आपने, तो आई डोंट थिंक देयर इज गोना बी एनी प्रॉब्लम इन दैट. दूसरी बात, लॉजिकल रीजनिंग. उसमें आपको सीरीज वाले सवाल आते हैं, ब्लड रिलेशंस वाले सवाल आते हैं, कुछ अरेंजमेंट्स के सवाल आएंगे, वो प्रैक्टिस करोगे 5 से 10 मिनट में आप वो भी क्वेश्चन निपटा सकते हो. ठीक है. देन मैथमेटिक्स में जनरली टाइम लगता है, चाहे कोई अच्छा कैंडिडेट भी होगा या नहीं भी होगा. इन माई टाइम आई हैड गिवन कैट का एग्जाम दिया, मेरे 98.9 परसेंटाइल अपने टाइम पे थे. ठीक है, when I even back in the day when I worked in the corporate and all of that. But even I may find problem in some questions, so that happens. Best of the best falter. So the thing is, be humble enough to accept where you are wrong and then try to change your strategy accordingly. तो जहां तक आप दोनों की स्पीड की बात, स्पीड का सवाल था, दोनों का सेम ही सवाल था. स्पीड लाने का तरीका यही है कि रेगुलर जब आप प्रैक्टिस करते हो, टाइम्ड एटमॉस्फेयर में करिए, और टेस्ट को लगाना नहीं है, सिर्फ मॉक टेस्ट को सिर्फ लगाना नहीं है, मॉक टेस्ट लगाइए और एनालाइज कीजिए. ट्राई टू एनालाइज व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एरिया एंड देन वेयर यू फॉल्टर्ड, एंड इन एवरी सक्सीडिंग मॉक योर परफॉर्मेंस शुड इंप्रूव. पर मॉक्स की स्टेज बाद में आती है, पहले हम प्रैक्टिस करेंगे ना. अब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, आप सॉल्व क्या करोगे उसको? You don't know about what happened in the age of Mughals. Which emperor patronized painting? Which emperor did not patronize painting? What happened in the in the 1916 Lucknow session? अगर आपने पढ़ा नहीं है तो how will you be able to answer? तो पहले हमें बेसिक्स पे वर्क करना है. और एक और चीज याद करिए कि अभी से लेके एक आदत डाल दीजिए, न्यूज़पेपर रोज पढ़िए. क्योंकि जनरली क्या होता है ना, सारी चीजें ना किताबों में से नहीं आती. अपने आईज और ईयर्स ओपन रखिए. कुछ सवाल ऐसे होते हैं, शायद कुछ न्यूज में चल रहा होगा, वो पूछ लिया जाएगा. ठीक है, तो न्यूज को थोड़ा सा सरसरी नजर से देखते रहिए. उससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू डेवलप अ वेरी, इट इज नॉट लाइक, आज वो जमाना नहीं है कि आप कमरे में बंद रह के पूरा मतलब एकदम आइसोलेट होके पढ़िए. अपना एक रेजिमेंट बनाइए और थोड़े से उन चीजों पे काम करिए. ठीक है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Yeah. Who wants to ask? Yeah. Please introduce yourself first. Tell your name and then. Sir, I am Bhumil Rathod. Hey, Bhumin, how are you? Fine, sir. Sir, as I am working professional, I am new to this competitive examination. So, sir, I am confusing about this, sir. How to start, especially, sir, in general studies. So, what materials I have to refer and all. See, for working aspirants also, देखिए, वर्किंग एस्पिरेंट जो नॉन वर्किंग है, उनको तो मैं कहूंगा कि आप खाने पीने, थोड़ी एक्सरसाइज करने और सोने के अलावा पढ़ाई करिए बस. इफ यू स्लीप, यू ईट, यू डू सम एक्सरसाइज एंड ओनली थिंग यू डू इज स्टडी. जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोज ऑफ यू वो वर्किंग, उनके लिए कि ऑफिस टाइम को छोड़ के आप जितना टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइज करें. ट्राई टू यूटिलाइज दैट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. और उसमें टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप काम भी कर रहे हैं, वो भी जरूरी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से. पर ऑफिस में अगर कभी फ्री टाइम मिलता है
थोड़ा करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर कुछ कुछ पढ़ लीजिए, और ऑफिस से 6 बजे के बाद तो फ्री होते हैं मैक्सिमम, इफ यू आर नॉट इन द डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। तो 6 बजे के बाद रात को 12-1 बजे तक आप 5 से 6 घंटे पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक दैट शुड बी एनफ। वीकेंड्स पे ट्राई टू टेक इट टू 10 to 12 आवर्स। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि आप जीएस कैसे करें। देखिए जीएस का सिलेबस हम जो है आपको पता है, उसमें आपको पॉलिटी की तैयारी करनी, ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करनी, ठीक है, इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो इट टेक्स टाइम। आप ये सोचेंगे कि आपका बैकग्राउंड है कुछ, एनी बैकग्राउंड इन No, sir. competitive, B.Tech student. so you're not Graduate. given any competitive examination before? No, sir. So in that case, see, it you will have to do a lot of effort in that case, क्योंकि आप उन बच्चों से compete करेंगे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। 1000 ही सीटें होती हैं आईएएस में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, उनमें 100 लोग आईएएस बनते हैं, बाकी डिफरेंट सर्विसेज। तो वो लोग इस एग्जाम की, उनके लिए ये जीएस वाला कंपोनेंट बहुत आसान होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ग्राइंड किया होगा, ठीक है। तो आपको अगर उन बच्चों से compete करना है, तो you will have to put an extra bit of effort, and I am here to guide you, no worries with that, but effort has to be tremendous. You have to 2 Okay, घंटे sir. 3 घंटे आपको बाकी बच्चों से एक्स्ट्रा ही लगाना है, ठीक है। और 1 Yes, साल sir. का करंट अफेयर्स हम कर लेंगे, कोई भी एक सोर्स पकड़ के। आई विल ऑल्सो बी टेकिंग इन माई क्लासेस, आई विल बी, और इसमें द प्रोग्राम जैसे बैच के बारे में यू गाइज वर आस्किंग, तो आई विल बी टेकिंग द क्लासेस, आई विल बी पर्सनली टेकिंग द क्लासेस। There is no going to be anyone else, and we will have, other IAS IPS officers serving as well as you who left the service. They will be also be interacting with you, and because we believe that we need to break that myth. आपके दिमाग में वो मिथ भी तोड़ना है कि आईएएस आईपीएस या सर्विसेज कोई बड़ी चीज है। दिमाग में मिथ टूट जाएगी तो एग्जाम अपने आप क्लियर हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस प्लीज गो Sir, अहेड। sir, as I have to start right now. Please, then see, listen, no individual questions. There are a lot of students waiting. Ask only, Okay, sir. generalized questions. Try to do that. Yeah, Sir, please. materials for books, specific books for gender studies. That will share in the group. No worries. Okay, thank you, sir. Yes. Sir, I think somebody is asking about the color blindness. I think color blindness is an issue because in the operational tasks, there will be an issue of color blindness. So that is generally a problem. कुछ बच्चों ने पूछा था कि नॉक नीज का या फ्लैट फुट का, वो यहाँ पे आईबी में इतना मसला नहीं है। आपका मेडिकल इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है जितना डिफेंस फोर्सेस में होता है। व्हाट इज द फिटनेस रिक्वायरमेंट फॉर द गर्ल्स एंड द बॉयज? सी, फिटनेस रिक्वायरमेंट ऐसा, आप तोंद निकाल के जाएंगे ट्रेनिंग में तो आपको ट्रेनिंग करने में दिक्कत हो जाएगी। यू विल बी मेड टू रन 1600 मीटर या 5 किलोमीटर के रन होते हैं जब, तो आपके लिए वहां पे दिक्कत हो जाएगी। फ्रंट रोल बैक रोल कैसे करोगे? तो फिटनेस इज डेफिनेटली, आई थिंक फ्लैट फुट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। फ्लैट फुट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। कलर ब्लाइंडनेस, आई थिंक इट्स डेफिनेटली एन इशू। और आई साइड का जहां तक काफी बच्चों ने पूछा है, आई साइड आप स्पेक्स पहन सकते हैं। स्पेक्स के साथ अगर आपकी 6x6 है तो चल जाएगी, ठीक है। 6x6, 6x9 and to an extent 6x12 also works. So that should not be a problem. इतना कोई मसला नहीं। And about people with physical disabilities, specially abled people, वो एलिजिबल नहीं है सैडली। वो मैंने आई थिंक बात पहले भी की थी, क्योंकि आपको जब ऑपरेशनल टास्क में जाना है तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो वो, इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, बट देन दैट इज हाउ इट इज। आई मीन वी need people who are able to take that the stress of the job physically as well. So sir, yeah. hello, sir. Yes, I think those Sir, who my asked the question before. I think you have asked the question before. Let's take other candidates also. We'll try to take as many candidates. Okay. Yeah, please go ahead. Now you're asking. Please ask. So my question is that while attempting the exam, we have some hesitation, and at that time hesitation, we make silly mistakes. So our accuracy also uh, gets, means you Okay. can understand, sir. Okay. Got your question. I think I can see Sudarshan. Sudarshan, how are you? Sir, good evening, sir. Good Very evening. good. How are Thank you, you? sir. How is Kerala? It's raining heavily. Okay, wonderful. Good to see you.
So Thank you, sir. Likewise. Thank okay, you. okay. How is your preparation? Are you going ahead with the preparations? Yes, trying, sir. I am trying to clear a little bit of maths Okay, and reasoning using okay, resources from YouTube. okay, wonderful. Yes. Any specific doubts you have for the class? Actually, yes, sir. Mm-hmm. Generally, in the government exams, the current affairs and general science are usually kind of unpredictable. They depend on whatever is happening around the world. Is that true for this exam as well? Manvendra, I think, I don't know what is this person doing. Just a moment. Yeah, please. Please go ahead. Yes, sir. I was saying generally in the government exams, the current affairs and general science section usually Mhm. depends on the current news and whatever is going around in the world. So, Mhm. is that similar for this exam? And is it safer to invest more time in the static portions such as maths, reasoning, etc.? Okay, okay. I got your question. Thank you, sir. Okay, and you will take one more question and then answer them. Anyone wants to, ask any question? Sir, I have one question. Yeah, please go ahead. So as I means already means seen somewhere कि जो सेंटर हम डालते हैं टीयर 1 में वही सेंटर फिर मतलब बाद में वही रीजन का सेंटर टीयर 2 या इंटरव्यू में हमें मिलता है. तो जैसे आई एम फ्रॉम एमपी बट आई लिव इन दिल्ली, तो एग्जाम फॉर्म भरते टाइम हमें कौन सा रीजन? ऐसा कुछ नहीं है. आप don't go on speculations. That's the most important thing. Let the notification come. Notification में you will get all the information. Okay, don't worry about these things. These are And trivial also things. sir, online there is mentioned that qualifying tier 1 का जो मार्क्स है वो 45 है. So is that true or that is also speculation? There is always, whenever you want to know any information, always focus on the official communication. ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो डॉक्यूमेंट या तो नोटिफिकेशन या ऑफिशियल वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन है आप उसी में फोकस कीजिए. ठीक है, उसमें क्या है, वो बेयर मिनिमम है कि 35 से ऊपर होना चाहिए. किसी किसी सेक्शंस का दिया है, वो बेयर मिनिमम है, वो कट ऑफ नहीं है. उससे कम होगा तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू गेट सिलेक्टेड. इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा. तो दैट इज अ बेयर मिनिमम. ठीक है, तो मोस्टली कट ऑफ विल गो इन द रेंज ऑफ जनरल कैटेगरी अराउंड 65-70. दैट इज गोइंग टू बी द रेंज. ओके, so about I think both of you asked about accuracy. First question about, see, when you are attempting the exam, it generally happens that आपने कहा कि आप tense हो जाते हो, you're not able to make the balance of judgment. ठीक है, to bring about that balance of judgment, what is important there is to practice a lot. अगर आपकी preparation अच्छी नहीं है, then only you will make errors. When you're playing on a steamy South African Wanderers pitch, bouncing off. If you not practice well, you will nick one. Similarly here, if you're not practice your mathematics, if you're not revised your concepts properly, अगर आपको पॉलिटी लक्ष्मीकांत अच्छे से अगर आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है, अगर आपने पॉलिटी अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो अगर आपको पार्लियामेंट पे सवाल आएगा तो आप वो नहीं कर पाओगे. यू विल बी डाइसी. और एक और चीज ध्यान में रखिए कि 10 जगह मत भागिए. Don't run after 10 things, 10 books and multiple things. है ना? Always just trust your resources. अगर आपने एक चीज पढ़ी है, उस एक चीज पे बार बार आप उस एक चीज को रिवाइज करिए. Rather than लक्ष्मीकांत भी पढ़ ली, फिर किसी और सोर्स से भी पढ़ लिया, एक और सोर्स भी उठा लिया, हिस्ट्री के लिए 5 बुक्स रख ली. बुक कलेक्टर नहीं बनना आपको. ठीक है, डोंट बिकम गैदरर ऑफ बुक्स. आपको फोकस ये कर रहा है कि आप एक ही चीज पढ़िए और उसी पे बार बार फोकस कीजिए. एंड आई थिंक सुदर्शन, वो योर क्वेश्चन वाज बैलेंसिंग, किस पे ज्यादा फोकस करना है ना. तो वहां पे आई थिंक द अप्रोच इज कि आपको सभी सेक्शन पे मुझे लगता है इक्वल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जीएस में जैसे 20 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड. ठीक है, तो यू कैन नॉट जस्ट कीप रीडिंग जीएस एंड इग्नोर करंट अफेयर्स कंप्लीटली. यू हैव टू बैलेंस आउट. You have to give due weightage to every section. अब मैंने बोला इंग्लिश आसान है, तो don't assume कि you now don't have to prepare. ठीक है, I never prepared, so that's the different thing. But I wouldn't want you to not prepare if you don't feel comfortable. If you feel you can take care of it, go ahead with it. That's a personal call. Some things you have to take a personal call. You have to assess the suitability of the examination कि मेरा strength क्या है. और मैं हर सेक्शन में, देखो आप क्या होता है ना, आप एग्जाम देते हो जब
टेस्ट देते हो, बार बार टेस्ट देते हो, बार बार रिवाइज करते हो, तो आपका जोन, मेंटल जोन एक रेज होता है, वन स्टेप एट अ टाइम, बढ़ते जाते हैं आपकी मेंटल लेवल, तो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उतनी ज्यादा क्विक होती है। अगर आपको पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट में अच्छा एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का क्या डिफरेंस है विद दी एडहॉक जजेस, ठीक है, तो उसमें आपका डिफरेंस आपको यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर वंस यू रिवाइज दैट, ठीक है। कौन से कमीशंस में रीअपॉइंटमेंट होती है वो बार बार रिवाइज करोगे तो बेटर होगा। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के प्रोविजंस क्या हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट की कौन सी वीटो होती है, इंडियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है वीटो को लेके, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो का क्या इशू है, तो वो चीजें अगर आपको रिवाइज हैं, देखिए टेस्ट टेकिंग बाद में आता है, अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो टेस्ट टेकिंग का तो कोई मतलब नहीं है ना। अगर मेरे को पता ही नहीं है, फंडामेंटल्स का ही नहीं पता है, अगर मेरे को इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं पता है तो मैं इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाऊंगा। WPI और CPI में डिफरेंस क्या है, आई शुड नो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, किसमें फूड और फ्यूल का कंपोनेंट ज्यादा है वो मुझे पता होना चाहिए। अब एशियन डेवलपमेंट, अब देखिए जियो पॉलिटिक्स इज हैपनिंग, सम ऑफ यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन अबाउट योर करंट हैपनिंग्स, नो, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स इज चर्निंग आउट, देयर लॉट ऑफ चर्निंग दैट इज हैपनिंग, तो इंटरनेशनल बॉडीज है वो आपको याद होनी चाहिए। ट्रिवियल क्वेश्चंस नहीं पूछता है इतना, आपको जो फोकस, आप मिडिल ईस्ट में कुछ एरिया का नाम ले लिया, गोलन हाइट्स, वेयर इज गोलन हाइट्स, यू शुड नो वेयर इज गोलन हाइट्स, व्हाट इज द लोकेशन। अब किसी को पूछ लिया कि इस्फहान कहाँ में है, तो इसका मतलब इस्फहान आपको नहीं पता है, इसका मतलब आप न्यूज भी फॉलो नहीं कर रहे, यू आर नॉट फॉलोइंग न्यूज, दैट्स द बेयर मिनिमम यू नीड टू नो। वेयर इज द पनामा कैनाल, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन क्या है, व्हाट आर द कंट्रीज दैट आर बॉर्डरिंग द रेड सी, व्हाट आर दोज कंट्रीज, हुथी रिबल्स किस एरिया में ऑपरेट करते हैं, हुथी रिबल्स की अगर बात करें, वेयर डू यू हुथी रिबल्स ऑपरेट, वी शुड नो इट, है ना। तो ये चीजें आप, वेरी गुड, इट्स इन येमन, एंड ये सारे ईरान के प्रॉक्सीज हैं, ईरान के प्रॉक्सीज एक तो हुथीज हैं, देन यू हैव हिजबुल्लाह एंड देन यू हैव दी हमास तो है ही है, तो वो सब चीजें, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा अगर आप, और देखिए एग्जाम क्रैक करना मुश्किल नहीं है, ज्यादा इसको अपने दिमाग पे मत लीजिए, एग्जाम आप ईमानदारी से 2 महीने अगर आप पढ़ेंगे, color blindness is an issue, I think somebody is asking, color blindness might be an issue, but I would still want you to take a chance, you never know, Hi, sir. But, yes, Sir, Hi. my name is Likit. I am from Karnataka. Please, what's your name? Likit, sir, Likit. Likit, okay, Likit, please go ahead. Sir, I am from Karnataka. Sir, actually, I have a joint finger in my left leg. Last 2 fingers has been joined. Is that will become an issue, sir? Actually. That won't be an issue. Okay, sir. Thank you so much, sir. Don't bother. Okay, sir. Yes. Who else wants to ask a question? Any other queries, guys? Chris, Jain, this side sir. again, sir. Jain sir, am I audible? Yes. Jai Hind. Jain sir, my name is Sneha Prajapati. I am from the Gujarat. Okay. So sir, I am right now working in the corporate sector. Apart from that, From the Gujarat नहीं होता, from the Gujarat नहीं होता, I am from Gujarat, okay? Okay sir, I am from Gujarat sir, and I am working in the corporate sector. And ठीक apart है, from that sir, I am preparing for the defense service examination. So ठीक है, 4 times I conference out from the different board. okay, no worries. So the next time sir, I want to avail this opportunity sir. So I am not very much sure about the tier 2 examination, which is the writing part. So Okay, what which are you type? not, what are you not sure about? The tier 2 examination, which is in which I have to write. Sorry? So tier 2 examination. What is the problem? What is the problem with that? Sir, I don't know. I know the dilemma I I never have. write sir for any examination. See, that nobody can help you, na? You have to learn to write. You have to work on your skills. If you have Yes to sir, scale for if you have to scale the Mount Everest, listen to me, I got your question. If you have to scale the Mount Everest and you don't have strong legs and you don't have the mental tenacity, I think that's not going to happen. So yes sir. the only thing, don't worry about it. Start working today. मैं एक चीज कहूंगा, अभी आपको सिर्फ tier 1 पे फोकस नहीं करना चाहिए. Right now, you should not focus on just tier 1. Your strategy should be to focus on both
tier 1 and tier 2 as well as tier 3. Reverse onwards. As जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती ऑफिशियल कि एग्जाम की डेट जब तक डिक्लेयर नहीं होती है, आप 60% टाइम अपना 60% ऑफ योर टाइम शुड बी डिवोटेड टू टियर 1, 40% टू टियर 2, और इंटरव्यू की तैयारी तो राइट नाउ आल्सो वी आर डूइंग. Yes, sir. When I interacted with the kids last time in the last batch also, before the interviews, I had, admonished one candidate very badly. क्योंकि बेचारे को 2 घंटे वो बेचारा खाना नहीं खा पाया था. लेकिन when I met him 2 days later, he had extremely, improved performance and he's finally selected now. So the idea is, मेरा यहाँ तो पर्पस सिर्फ आपको पढ़ाना या वो नहीं कर रहा है. एक personality development is also a very integral part, and that you should not wait for the tier 2 results to be declared. This is your time to really express yourself in a very nuanced manner. Take an opportunity, take this opportunity, make it an exciting adventure for yourself. है ना? अगर आपको लिखना नहीं आता है, आप लिखना शुरू कीजिए आज से. If we want to, अगर हमें भूख लगी है, अगर हमें खाना खाना है, खाना नहीं बनाना आता, ये तो बात ही नहीं है ना. स्टार्ट Yes, sir. कीजिए, बनाना सीखिए. अब कैसे बनाना है वो मैं मदद करूंगा आपकी, और भी कोई भी मदद कर सकता है आपकी, जो आपको मेंटर अच्छा, whoever is there can help you out. बट ये अप्रोच नहीं है कि मेरे को आता नहीं है, ये कभी नहीं बोलना है. हमें सब आता है. No, sir, I want to learn it. So this is the same question. How can I learn it, sir? You will learn it. You'll definitely learn it. Try to flip the perspective. Anyways, we'll take the next question. Yes, please go ahead. Sir, shall I? Sir, Yeah, please. sir, I have a question. Sir, Please introduce yourself and then ask the question. Others can please mute yourself so that Can I I'm take able it, to sir? listen to the question carefully. Yeah, please. Sir, I have a question that No, only Manvendra, one question at a time. One question at a time. I think we have taken your question. okay. There are a lot of candidates, no? So we'll take. sir, shall I? Yeah, please ask, and I'll request to all of you, please don't ask any individual questions that may not benefit others. Try to ask more general questions जिससे बाकी बच्चों का भी फायदा हो. चलिए, please go ahead. Good evening, sir. My name is Pallavi Tiwari. I am from Lucknow. Good Sir, evening. I have a question. Like, it falls under which group, sir? Sir, it is Group B or it is Group C? Sir, I'm in a deep dilemma, sir. Like, in my family, people are in army only, and as a guest they are. So I'm in a dilemma whether I should approach this exam or not, sir. I Just in a think this is you are actually in a dilemma, and this Sir- dilemma doesn't serve you well. Sir, actually, 3 people are there in defense, sir. My sister-in-law, my brother, my brother-in-law. They So all we'll- are major and lieutenant colonel. Now I don't know it falls under Group B or Group C, sir. Or I have Then a you age should for UPSC also. then you should prepare for that exam, no? Then you should go for it. Why are you even considering this? That is not even the question. And anyways, that's a personal question. We will take personal questions in another discussion. But still, it falls under which category, sir? It is Group B or it is Group Have C, you sir? have you read the notification? Sir, I have read in which it is mentioned that grade pay is 4600. In that case, it is showing Group B. But when I search on Google, it is showing Group C, sir. So even I don't know exact. We'll take that question. I'll take that question later. I think this is a more specific question for your own sake. So I would rather address those questions which are more relevant for others, because it will waste the time of other candidates, isn't it? Agree to your point, sir. Agree. Yeah. I think you should come and join the organization yourself to feel what's the situation here. So I think there is lot of preconceived notions in a lot of people, so that need to be busted. Anyways, we'll talk about that later. Anyways, next question, please. Good evening, sir. My name is Very Ayan. good. So I want to Please ask put your that camera on as well. I cannot see you, Ayan. I think it would be yes, great sir. if I can see you. I'm actually in a low bandwidth network, so it Okay, won't work. no, I can't Yes. see you, but anyways, please go ahead. Yes, sir. So I'm a working professional right now. I work for 9 hours a day. I just want to know that for other aspirants who are working at this point of time,
how can we approach the preparatory phase for this particular exam? That's a very sensible question. I think that is the type of questions I want you to ask also. That will benefit a wider group of people. No, we'll take those questions because we have, I think, how many of you have joined? I think 60, 70 of us. So that others don't feel left out in the conversation. That's the point. So any other questions along with that? Ayan? No, sir. Primarily this, how to approach the preparatory phase along I with the think work. I've answered this question before as well, but then see, just understand this thing that apart from your working time, whatever time that remains, you should definitely utilize 100% of that time. That is going to be your, approach. And when the exam is nearing, you can take a couple of weeks off. You can take a, medical leave or whatever leave you want to take. You can take that leave and prepare full on. So we have to make do with whatever resources are available to us. We cannot, kind of crib about what we don't have. We cannot crib about, or we cannot, the approach has to be finding solutions. I think the mindset is the key. I really, would want you to have a good mindset when you, approach the examination of that matter. And as far as you asked a good question, so I would say just focus on the deliverables, focus on the, things that are needed to be done in the time to come. And आप focus करेंगे तो मुझे लगता है हो जाएगा. 4 to 5 hours of, on the weekdays, and your weekends off. Mostly corporate people have weekends off, I guess. Yes, sir. हाँ, तो weekends में try to slog in 10-12 hours. तो हफ्ते का आप कोशिश कीजिए कि एक नॉर्मल कैंडिडेट जो फुल ऑन प्रिपेयर कर रहा है तो 8 घंटे अगर वो पढ़ रहा है तो 8 7s are 56, तो roughly 50 to 60 hours if somebody is giving. You can manage with 45-50 hours over a week, and don't count yourself out as yet, isn't it? Sometimes what happens is you don't know what is your capability. Maybe within 4 hours you'll study something that somebody will study in 8 hours. So like that. I hope I've answered your question. Yes, sir. So just a small follow-up question. Just before the course starts with you, is there something that we can do before that, like Yes, going through the yes. basics or something like that? I was interacting with one of the candidates yesterday, so I don't want you to wait for any course to start. I don't want to join with me. That's not the point at all. You join here, you join wherever. That's not the question. But whatever you do, don't, I want you to have a clarity of thought. Don't be too loose in yourself. Don't, let your energies be too dissipated. So right now, one thing I would tell you, 2 to 3. First of all, start reading newspaper. पहली चीज न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए. जो लोग न्यूज़पेपर पूरा नहीं पढ़ सकते, I think there are a lot of, I would advise you to listen to the only IS. There is this channel by Sumit sir. There is Sumit sir. I don't recommend anyone, but I personally followed him when I used to prepare. तो वो ना आधे घंटे में he used to narrate, the summaries of डेली न्यूज़पेपर. तो वो आपका, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप उसको सुन सकते हैं अगर आप पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं. वो एक करिए. दूसरी चीज, आप जीएस का सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट उठा लीजिए. आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट विद पॉलिटी. पॉलिटी आप स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज दैट्स द मोस्ट. लक्ष्मीकांत जिसने पढ़ी नहीं है वो लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू कर सकता है. ठीक है, यू कैन स्टार्ट रीडिंग लक्ष्मीकांत. एंड उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स, न्यूज़पेपर एंड दिस. Along with that, जिसका मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर है, somebody who is not too well versed in mathematics, तो थोड़ा सा अपना बेसिक्स को ब्रश अप करना शुरू कीजिए थोड़ा सा, so that over a period of time you अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस आई थिंक आपको समझना पड़ेगा. Sometimes express investigation. I please ask your question. I think it's difficult for me to read. It would be much better if you can ask your questions. Okay. सो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए. आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर और बेसिक समथिंग ऑफ द जीएस और करंट अफेयर्स का, आई थिंक विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक. मोस्ट प्रॉब्ली विल स्टार्ट द प्रोग्राम. तो नेक्स्ट वीक में करंट अफेयर्स का भी स्टार्ट करेंगे. तब तक आप अपने लेवल पे, अगर आप कहीं और ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई और आपको अच्छा प्रोग्राम मिलता है जहां पे भी आपको यू फाइंड वैल्यू, डू फाइंड वैल्यू इन, अप्रोच दैट, institution, or you have a mentor, you have a senior who can guide you, do that. The idea is not to waste time, not to speculate. ठीक है, स्पेकुलेशन में नहीं जाना है और अननेसेसरी क्वेश्चंस में नहीं जाना है कि मुझे एग्जाम ये देना है या नहीं देना है, इस एग्जाम का क्या ग्रुप है या क्या नहीं है. If we want, why not prepare for the IAS? No, we should go for the IAS. That's even much better. So we should
approach the in that manner. मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए, अच्छे से करिए, और I think उस तरह से you will do much better. ठीक है? I hope I've answered that question. Okay. Any follow? So we'll take 2-3 questions because it's a very long session. You guys have not been very specific with your queries, so I wanted you to ask very questions that will benefit most of us. Now we'll take 2 to 3 more questions, which are very helpful for other candidates. So please ask only those questions जिसका सबको फायदा हो जाए, और किसी को इंडिविजुअल क्वेरीज हैं तो वो उसके लिए आप हम पर्सनल सेशन ले सकते हैं ताकि बाकी बच्चों का टाइम, आई डोंट वांट टू वेस्ट any other candidates Sir, I time have a because question. yeah, please ask Sir, question. सर ये Yes, yes. इंटरव्यू सर इंग्लिश में होता है या हिंदी में भी हो सकता है? I cannot see you, I cannot hear you properly. Sir, can you hear me, sir? I think you asked a question again. Please ask. Go ahead. सर इंटरव्यू ओनली हिंदी में इंग्लिश में होता है या हिंदी में भी हो सकता है? कि देखिए, इंग्लिश आपको जानना आज के परिप्रेक्ष्य में, इन दी मॉडर्न पार्लेंस, अगर आपको अंग्रेजी अच्छी नहीं आती है तो दैट्स अ प्रॉब्लम. मैं कोई हिंदी को नहीं कह रहा हूँ खराब है या इंग्लिश को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ. यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जाननी चाहिए, हमें सभी भाषाओं को जानना चाहिए. जो भी काम होगा इंटेलिजेंस में या आप किसी भी डिपार्टमेंट, अंग्रेजी में ही होता है, तो आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, है ना. आप इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं बट दे विल अप्रिशिएट अगर आप अंग्रेजी में दें, क्योंकि काम अंग्रेजी में ही होगा आपका मोस्टली. जो आपका पेपर वर्क होगा, या देखिए आईबी में आपको ना बंदूक नहीं चलानी है, आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है, आपको ड्राफ्टिंग करनी है, एनालिसिस करना है. तो वो एनालिसिस आपको अंग्रेजी में ही, आपको हिंदी में नहीं होगा वहां पे काम. हिंदी आपको ठीक ओके है, सर. ठीक है, तो अंग्रेजी अगर आपका वो है तो थोड़ा काम कीजिए उस पर. ठीक है. बाकी लोगों का भी ये यस सर. रेलिवेंट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था कि और भी बच्चों को ये इस चीज का थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि क्या इंग्लिश जानना जरूरी है. देखिए ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए. अगर आप बहुत दिक्कत हो रही है, इफ यू फाइंडिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द इंटरव्यू टू आंसर द क्वेश्चंस, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं. पर हमें क्यों नहीं आनी चाहिए अंग्रेजी? आनी चाहिए ना. वी शुड बी एबल टू. ऑब्वियसली. अच्छे से इंग्लिश भी बोलिए, अच्छे से हिंदी भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. आपको पर्शियन भी सीख लीजिए, मैंडरिन भी सीख लीजिए, फ्रेंच भी आनी चाहिए, इटालियन भी यस सर. सीखिए. ठीक है. लैंग्वेजेस तो जितनी ज्यादा हो जाए, इंग्लिश हिंदी तो आनी ही चाहिए. दो लैंग्वेजेस या मतलब अच्छे से आनी चाहिए देश में. ठीक है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि मैं यस बोल सर. रहा हूँ कि तमिल भी सीखनी चाहिए, द्रविडियन भी, जो भी हमारी लैंग्वेजेस है. मलयालम इज वेरी डिफिकल्ट, आई हैव हर्ड, सुदर्शन. I have friends from Kerala, a lot of friends from Kerala, so who are in the police service. Some of them are posted in Manipur, so it gets a little tricky out there. So मेरे को मलयालम कभी बहुत मुश्किल लगी. Telugu was relatively easy to manage. So, anyways, on a lighter note, so अंग्रेजी आप सीखिए, अच्छे से वर्कआउट कीजिए उस पे. This is actually, it's called the lingua franca. अगर आप जाने, English is the lingua franca. अगर आप फॉरेन मिशंस पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आपको अंग्रेजी तो आनी पड़ेगी ना, तो आप किससे कनेक्ट करोगे? तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा इस पे काम कीजिए. ठीक है. यस. व्हाट Sir, I एल्स? have व्हाट one एल्स? question, sir. प्लीज फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड आई कांट सी यू, whoever is asking the question. सर मैंने पूछा इसने ऑलरेडी सर. मैंने एक बार तो क्वेश्चन पूछ लिया. जो आपने बताया था ना कि आपका प्रोग्राम चलेगा मेंटरशिप वाला, तो उसका टाइम वगैरह कैसे रहेगा सर? और ठीक है. वो मेंटरशिप का मेंटरशिप प्रोग्राम होगा कि गाइडेंस की टाइप? देखो, मेंटरशिप वो मैं आपको पर्सनली, आई विल बी हैंड होल्डिंग यू, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ, आई विल बी डिस्कसिंग विद यू योर पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी. जैसे हम बात करेंगे, विल वर्क ऑन दैट, एंड आई विल गिव यू टास्क्स ओवर द वीक, है ना. हफ्ते के ऊपर आई विल गिव यू टास्क, एंड देन आई विल रिव्यू दैट व्हाट प्रोग्रेस यू आर मेकिंग. तो उसमें अगर आप प्रोग्रेस नहीं करोगे तो फिर आपको डांट भी पड़ेगी. ठीक है. अगर आप डांट खाने के लिए तैयार हैं तो आ जाइए, वरना फिर कोई अच्छा एक कोजी और कुछ उसमें ढूंढ सर लीजिए. टाइम वगैरह का कुछ रहेगा सर? क्योंकि ऐसे टाइम का उसमें मेरे टाइमिंग जैसे है उसमें. बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं. हाँ हाँ, उसमें टाइमिंग का, मेंटरशिप में कोई टाइम है. रात को 12 बजे भी बात करेंगे आपसे. मैं जब आईबी के इंटरव्यू थे, आई थिंक 15 दिन चले थे. आई यूज टू स्टार्ट एट 10 in the morning and 12:30, 1 in the night I used to finish taking those interviews. तो ऐसा कुछ नहीं है. टाइम इज नॉट द क्राइटेरिया. कभी नौकरी में भी जाओगे तो ओके रात सर, में थैंक आपको यू सर. पूरी रात बाहर बाहर रहना पड़ेगा, तो वो टाइम का मसला नहीं है. डोंट वरी. ठीक है. डिनर विनर कर ओके, लिया आप थैंक यू लोगों सर. ने? मेरे साथ आप भी डिनर करके बैठे हो? कर लिया डिनर सबने?
क्या अभी करोगे sir. जाके सेशन यस सर, यस सर, यस सर हो गया कर लो। डिनर। मेरा एक डिनर हो गया। क्वेश्चन है सर। अच्छा सवाल पूछिए यार, सवाल पूछिए, 2-4 मेरा सवाल। क्वेश्चन है कि सर मैं सीएपी पर्सनल हूँ और मेरे को पूछना था एज रिलैक्सेशन के बारे में। देखिए एज रिलैक्सेशन का उसमें मेंशन किया हुआ। एज रिलैक्सेशन के ऊपर देखिए 2-3 चीजें हैं। अगर आप इंटेलिजेंस में आईबी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं एट एनी डेजिग्नेशन, तो उसमें आपको 40 साल तक की रिलैक्सेशन है, ठीक है। 40 ईयर्स तक आप दे सकते हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स को नहीं है, ठीक है, बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए नहीं है। और आई थिंक जनरल कैटेगरी के लिए एक और चीज थी, बच्चों के काफी सवाल आ रहे थे कि सर मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, कैन आई अप्लाई। तो नोटिफिकेशन को देखिए, आपको क्रिटिकल रीजनिंग डेवलप करनी। क्रिटिकल रीजनिंग आप ये दीज क्वेश्चन शुड नॉट बी आस्क्ड। लॉजिकल रीजनिंग आप एग्जाम में दोगे और यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग क्यों नहीं लगाते हैं आप? इट्स अ वेरी उसमें बेसिक थिंग। मैं सर आपको उसमें नहीं बोल रहा सेंट्रल हूँ, नहीं मैं नहीं सर, दूसरों। मैं कह रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन कैंडिडेट्स लिखा हुआ है ना वहाँ पर। नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है वो। आई थिंक डिपार्टमेंटल, अगर आईबी में कर रहे हैं उसके लिए है, बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए नहीं है वो, है ना। और आई थिंक फॉर डाइवोर्स्ड वुमेन कुछ करके हैं वहाँ पे 35, 38 या 40 का वहाँ पे रिलैक्सेशन है। और बाकी कैटेगरीज के लिए रिस्पेक्टिवली 3 साल या 5 साल की रिलैक्सेशन है। वो नोटिफिकेशन में आ जाएगा। पर इसमें कट ऑफ डेट क्या देखी जाती है, ये ध्यान रखिए कि 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपको जब लास्ट डेट होती है एग्जामिनेशन की ना, फॉर्म भरने की। फॉर्म भरने की, जहाँ फॉर्म भरना है ना, जैसे अभी एग्जाम 19 तारीख को खुल रहे हैं और 10 अगस्त तक है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनीवन कैन करेक्ट मी ऑन दैट, ठीक है। तो Yes, 10 अगस्त को अब माय टीम मेंबर्स दे टेल मी कि सर ऐसे ऐसे कोई मैसेज करके ये बोल रहा है कि मेरा जन्म 18 जनवरी 1998 को जब भी हुआ, कैन आई अप्लाई। यार अपनी एज का हिसाब लगा लो ना कि 27 से कम है या ज्यादा है। अब मैं हर एक बच्चे का तो नहीं बता सकता ना कि आपकी एज कितनी होगी। आप देख लो 27, अगर 10 अगस्त को आपकी 27 साल से कम है तो आप फॉर्म भर सकते हो। सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अगर उससे ज्यादा है तो आप नहीं भर सकते अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो, ठीक है। तो सुधीर आपका सवाल जो था कि सीएपीएफ के लिए शायद मुझे लगता है वो एज रिलैक्सेशन नहीं है। एक्स सर्विसमैन के thank लिए you, वो होता है ना, एक्स सर्विसमैन के लिए होता है वो। अब अगर एक्स सर्विसमैन है उसमें रिलैक्सेशन है, सर्विंग के लिए नहीं। ओके एक्स थैंक सर्विसमैन यू के सर। लिए, एक्स सर्विसमैन 40 उनका। आई थिंक एक और सवाल भी आया था कि एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ वगैरह तो उनका बहुत कम रहता है। जो डिफेंस फोर्सेस से करके आते हैं ना उनका बहुत कम रहता है कट ऑफ। तो वो टेंशन, वो आराम से सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है। और कोई सवाल है किसी का? Sir, I have a question. हाँ जी पूछिए। Sir, am I audible and visible, sir? यस यस, प्लीज Sir, my इंट्रोड्यूस name is योरसेल्फ, Arshil. आस्क योर क्वेश्चन। Sir, my question is regarding the notification. अभी जो लास्ट ईयर जो प्रीवियस में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें प्रेशर राइटिंग का मेंशन किया था डिस्क्रिप्टिव में, बट अभी जो नोटिफिकेशन आया शॉर्ट नोटिस उसमें प्रेशर राइटिंग मेंशन नहीं है बट लॉन्ग आंसर मेंशन है। तो क्या पेपर पैटर्न में कोई चेंज हम देख सकते हैं सर इसमें? थैंक यू। क्या फर्क पड़ेगा उससे? आई आस्क यू, मेरा सवाल है आपसे, उससे क्या फर्क पड़ेगा अगर प्रीसी राइटिंग है या नहीं है? नहीं सर, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा ना। देखिए जो फेज 2 होगा उसका आप एसेंस समझिए, वो आपसे क्या जानना चाह रहे हैं। फेज 2 में रिटर्न जो पहले क्या होता था, एक ही पेपर होता था, उसी में आपको एक एसे लिखना होता था, ठीक है। और एक बात ये ध्यान रखिए कि जब आपका इंटरव्यू होता है ना, जो आपने एसे लिखा होता है वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने हाथ में होता है, ठीक है। तो आपका सिर्फ यहाँ पे एग्जाम टेस्ट नहीं हो रहा, आपका दिमाग भी टेस्ट हो रहा है, आपकी साइकोलॉजी भी टेस्ट हो रही है। और मैं काफी बच्चों से अभी जैसे आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, काफी लोगों को मुझे लगता है माइंडसेट पे काम करने की बहुत जरूरत है, ठीक है। साइकोलॉजी पे काम करने की बहुत जरूरत है। यू नीड टू बी विटी एंड शार्प हेयर। यू एक मतलब क्रिटिकल रीजनिंग होनी चाहिए हमारी। क्रिटिकल, वी शुड बी वेरी क्रिटिकली शार्प इन रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशंस। वी शुड रीड बिटवीन द लाइंस। हमारा वेपन ये पेन होने वाला है आईबी में। ये पेन की ताकत आप नहीं समझते हैं। वो हमेशा हमें AK-47 लेके नहीं जाने की जरूरत है। ये पेन में इतनी ताकत है ना। आई टेल यू अबाउट द आर्ट ऑफ वॉरफेयर इन स्टेटक्राफ्ट। हाउ countries are how countries are run, how future of civilizations is created. तो उसमें एक चीज आप समझिए, अगर जंग मैदान जंग में लड़नी पड़ रही है तो वो पहले ही फेलियर है। फाइटिंग on the battle, waging war on the battlefront is a failure.
It's a failure of the country's policy. Only that war is successful which is not to be fought. ये बात समझिए आप. और आप जो फेज 2 की बात कर रहे हैं, why I am telling you this, वहां पे आपका क्रिटिकल रीजनिंग टेस्ट होने वाली है. आपको ऐसे क्यों लिखवाया जाता है? आप समझिए कि किसी भी चीज के पीछे उसका पर्सपेक्टिव क्या है. व्हाट इज द एग्जामिनर ट्राइंग टू टेस्ट आउट ऑफ यू? आप ऐसे लिखेंगे किसी टॉपिक पे, आपकी सोच पता चलती है. योर थिंकिंग विल बी काइंड ऑफ टेस्टेड देयर कि आपकी एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है जियो पॉलिटिक्स पे, सिक्योरिटी पे. आपको पूछा जाएगा सवाल, एनालाइज इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन एंड प्रेजेंट अ नुआंस क्रिटिक ऑफ दैट. ठीक है, अब उसमें आपको कुछ जनरलाइज ओपन आपके गेंद आपके पाले में फेंक दी गई है. अब आप उसमें कैसे डील करोगे? आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी बात करना है. हाउ इंसर्जेंसी क्रॉप्ड अप देयर, व्हाट इज द नक्सल प्रॉब्लम इन इंडिया, what about the Dantewada axis, what about the core of the core problem, what about the TCOC operations that are being run there, what are the anti-Naxal task force, how technology can be used, what are the threats from the maritime front. अब now we understand अब maritime जो borders हैं उनको हम इतना importance नहीं देते, but you must understand the Indo-Pacific realm, the Southern Indian Ocean. Maritime security is very, very critical. We are sitting in a very, very hot bed of geopolitical churning. What is happening in our west? What's Pakistan doing there? What is happening in our east? Regime change happening in Bangladesh. CIA at work here, CIA at work there. MSS is working. MSS is also, creating some ruptures. अभी एक ऑपरेशन हुआ म्यांमार में, आपने पढ़ा होगा, सर्जिकल स्ट्राइक. कौन करता है? अननोन गनमैन के बारे में सुना होगा कुछ. I don't know. They don't exist for me. I don't know. People talk about this. I don't know whether it exists. I don't comment on that. What happened? What is happening in Iran? हमारा क्या स्टेक है वहां पे? हमारी are we exercising strategic alignment with the NATO and the US, or are we exercising strategic autonomy when it comes to international stance on various geopolitical issues? We are presenting ourselves as a country which as a voice of the global south. Are we doing that? Are we able to deal the problems that are there within the country? Are we doing that? We are not. You see language wars happening. This is again a policy of, I shouldn't say, but this is again statecraft. This is the war. This is the war. Creating ruptures, exploiting fault lines, targeting the vulnerable people. अब किसी के घर से, फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ सिख, यू खालिस्तान का नैरेटिव आप फैला दो, ये क्या होता है? दिस इज, अब कश्मीर में जाओ, हर मुस्लिम को आप टेररिस्ट बोल दो. दिस इज नॉनसेंस. नॉर्थ ईस्ट में आई हैव सीन पीपल, नॉर्थ ईस्ट में देयर आर पीपल don't know about the northeastern culture. There is a lot of myths around that. So we have to educate ourselves about a variety of things. जो सोशल मीडिया पे हम सुनते हैं ना, that is all nonsense. आपको मैं चाहता हूं, अगर आप अभी we are interacting, I want you to be thinking individuals. Thinking individuals. We have to think. We have to learn to, utilize our mind. And अगर ये perspective आपका होगा, एग्जाम क्लियर करना छोटी मोटी बात हो जाती है. You have to focus on becoming men and women of value. Keep your heart and mind in the right place. Heart and mind in the right place, and become sharp here. Invest in your mind. Invest in yourself. अपना सिग्नल टू नॉइज रेशो एकदम बढ़ा दो. नॉइज एकदम जीरो, सिग्नल एकदम हाई. नॉइज क्या है? जो भी चीज आपका पर्पस को फीड नहीं करती है. There are a lot of things we are doing every day. आजकल तो people say that in this world of, there is this book by Mr. Harari where he mentions, Yuval Noah Harari, must have read about this author. So he talks about, in this world of deluge of misinformation, clarity is the power. Clarity comes from going within. You don't need to seek validation from me or from anyone or from your teachers or from your mentors. You need to connect with that deep inner voice inside you, that bosom that shines through. Once you focus into that, power that is within you, I think आपके दिमाग में बहुत ज्यादा clarity आ जाएगी.
और जब वो क्लैरिटी आ जाएगी तो एग्जाम सभी क्लियर हो जाते हैं, एग्जाम आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। वो क्लैरिटी पे फोकस करना है। कितने दूं? फिर आप क्या करोगे, आपको हाँ ठीक है, प्रायोरिटी, कितने दूं? आई थिंक प्लीज म्यूट योर सेल्फ, आई थिंक मेंटेन द, समझ आई आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो सवाल किसका था? आई थिंक आशीर, है ना? तो आपका सवाल मुझे भूल गया, क्या सवाल था आपका वैसे? सर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर राइटिंग सर। हाँ कृषि, अभी मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया होगा लेकिन उसका। जी सर, मिल गया सर। मिल गया ना? तो ये थैंक यू। बहुत, यहाँ पे हमें क्या सोचने की जरूरत है कि हमें जोन आउट करना है हमेशा, जोन आउट। एग्जाम में क्या आएगा वो मेरा मेरा डिसीजन या आपका डिसीजन नहीं है। अब मेरे को सिर्फ यॉर्कर ही मिलेगा खेलने को, ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता ना। अपोजिशन टीम मेरे को बाउंसर भी मारेगी, वाइड मार के मेरे को सेंचुरी नहीं बनाने देगी, वाइड से जिता देगी मैं, बोलेगा तेरा और वो उनका प्रेरोगेटिव, वो एग्जामिनर डिसाइड करेगा। मेरे को अपना आर्मरी को स्ट्रेंथन करना है, मेरे पास मोटार भी होनी चाहिए, मेरे पास S-400 भी होनी चाहिए, मेरे पास न्यूक्लियर वेपन भी होना चाहिए। मैं इस्तेमाल नहीं करूँ वो मेरा डिसीजन है, लेकिन होना तो चाहिए। अब मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है तो भाई दुश्मन डरता है अटैक करने से पहले। तो आपके पास वेपन सारे होने चाहिए, कहाँ पे कौन सा वेपन इस्तेमाल करना है ये कौन डिसाइड करेगा? आप करोगे। आप कब करोगे? जब आपको अपने शक्तियों पे पूरा विश्वास है, when you have the full confidence in your abilities, and that only comes from one thing, that comes, confidence in yourself comes from competence, when you grind, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, ये डायलॉग है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, रगड़ो अपने आप को, वर्क योरसेल्फ, ग्राइंड योरसेल्फ, डे इन डे आउट, don't fucking waste any time, don't waste any time, just put yourself into that, in that zone. I would want you to interact with all of you guys personally and then I'll grind you. But then that's not possible. That's not possible. Because I want the young boys and girls of this country to shine through, to become something that this nation, because see, India is sitting at this inflection point. If you develop this mindset, you know, this country will become great. IB, IAS, आर्मी छोटी चीजें हैं, ये बड़ी चीज देश है। और अगर देश आपके जहन में है ना तो तेज सब बोल होगा। थोड़ा। तो देश को, IMA में अगर जो लोग फोर्ट से कनेक्शन रखते हैं तो दे मस्ट नो अबाउट दिस चैटवुड क्रेडो, है ना, कि द सेफ्टी ऑफ योर कंट्रीमैन कम्स फर्स्ट, then the men you command, and you come at the end. So India is always first, always and every time. India always comes first. तो अगर आपके दिमाग में, जहन में एक, कहते हैं ना, एक वो पंक्तियां हैं कुछ की, जो बहा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वे हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो स्वदेश का प्यार ऐसे खोखले हमें सोशल मीडिया पे लिख देने से नहीं होगा, इंडिया इज ग्रेट, नो, दैट इज नॉट लव, दैट इज फुलिशनेस। कि सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दिया हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया, दैट इज एब्सोल्यूट क्रैप। व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर कंट्री? आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कुछ करना ही नहीं, आपको अपने आप पे काम करना है। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, and once you become that light, it will spread more light into the world, isn't it? आपको कुछ नहीं करना, आपको किसी की मदद नहीं करनी है, आपको अपनी मदद करनी है। अपनी मदद कैसे करोगे? अपने आप पे इन्वेस्ट करोगे। इफ यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अब प्रधानमंत्री है हमारे मोदी जी, अभी हम देखते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, ठीक है, लेकिन उसके पीछे उनका 45 साल का संघर्ष है। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो ऑक्सफोर्ड में जब थे, तो एज अ सिख, दोज ऑफ यू हु आर सिक्स, यू कैन अंडरस्टैंड, सुबह टर्बन पहनना है, उससे पहले आपको हेयर वॉश करना है, वो 2 बजे उठ के लंदन की ठंड में वो करते थे, ठीक है। मिल्खा सिंह कहाँ से आके, डॉक्टर कलाम। अब डॉक्टर कलाम की एक बहुत ही जबरदस्त चीज है जो आपको इम्बाइब करनी चाहिए, आपको ना अपने फेलियर्स को ना छुपाना नहीं चाहिए कि यार मैं फेल हो गया। जब वो डॉक्टर विक्रम साराभाई साहब के पास गए अपना रिज्यूमे लेके, तो उस रिज्यूमे पे ना वो सारी रिजेक्शंस लिखी हुई थी कि मैं यहाँ रिजेक्ट हो गया, यहाँ रिजेक्ट हो गया, यहाँ रिजेक्ट हो गया, यहाँ रिजेक्ट हो गया, यहाँ रिजेक्ट हो गया।
फिर सारा भाई साहब ने पूछा डॉक्टर कलाम से कि कलाम तुमने तो ये क्यों, ये तुम छुपा सकते थे। कहता सर, as long as I don't accept myself, how will the world accept me? Such a beautiful thing. And this thing reminds me of one more thing. My school principal, Father Joseph. So he is a little dark complexion. तो मुझे हम we used to sit in the church. I come from a convent school. So we used to sit in the church in the evenings. So he used to tell me, कहता Joe, when I was a young boy, what happened? I would hide. People would taunt me for my dark color. I would feel a little, uncomfortable. मुझे लगता था यार मैं तो काला हूँ, मेरे को ऐसे होता है, मैं बुरा फील करता था। कहता at a time came when I accepted myself, and that was the day then everything changed. Then things wouldn't matter to me. So once we accept what we are, that's how we grow. We all fail. जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? We don't allow ourselves to fail. We always want to succeed. That is never going to happen. We will fail at something, some point or the other. But if we always want to be successful and not fail at anything and just walk at very cautious paths, that's a recipe for disaster. Then we will not achieve anything worthwhile in life. You have to burn yourself and highlight yourself to put yourself to the hardest grind, not fearing failure. Not fearing failure is the most important thing I want you to leave today. Let go of the fear of failure. और एक और चीज, काफी बच्चों का मेरे को ये क्वेरी आया है, पिछली बार भी ऐसे था और इस बार भी, कि सर मेरे को देश को सर्व करना है सर, मैं आईबी में जाना चाहता हूँ, आईबी करके रहूंगा, आई विल वर्क 100% सर, अब कुछ भी करके, मतलब I am going to dedicate my 100%. This shows desperation and kind of, that should not also be the case. आप बहुत मेहनत करेंगे, कल को क्या पता सिलेक्शन ना हो. There is no guarantee in life. Even life has no guarantee. तो गीता का श्लोक वो याद रखिए हमेशा, निष्काम कर्मयोग, renunciation in action. Listen to me very carefully. Renunciation in action, not renunciation of action. Renunciation का मतलब समझते हैं आप? Renunciation means किसी चीज को छोड़ देना. काम के बीच में renunciation होनी चाहिए. While you are doing, forget about the result. Don't leave the work. Nishkam Karam Yog. That is very important. You be ruthless. Absolutely ruthless. आपसे अगले 2 महीने आप लोगों से ज्यादा मेहनत करने वाला कोई होना ही नहीं चाहिए इंडिया में. All of you warriors here. There should be no one more hard working than all of you. And after that, I don't think result will matter to you even. आपको फर्क नहीं पड़ेगा. जब आप आखिरी वो तिनका भी अगर अपना दे दोगे, उसके बाद सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन डजंट मैटर. यू हैव सक्सीडेड इन लाइफ. यू हैव सक्सीडेड. यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांटेड टू अचीव. दैट्स व्हाट एग्जाम और लाइफ में जो ग्राइंड होता है. अब एक ओलंपियन 4 साल मेहनत करता है उस 10 सेकंड की रेस के लिए, और वहां हार भी जाता है, लेकिन उसने 4 साल जो मेहनत की है वो जीत वहीं पे गया हुआ है. दैट्स वेयर ही सक्सीडेड. तो आपको जीतना कहाँ है? जंग के मैदान में तैयारी नहीं होती. जंग के मैदान में सिर्फ उस तैयारी का अंश दिखता है. 99.99% जंग के मैदान से पहले होता है काम. युवराज सिंह hit 6 sixes in that event in the World Cup, but that work for the 6 sixes was done when his father was grinding him in the fields, in the battle, in the 22 yards. आपको खुद को ग्राइंड करना है. आपको खुद को ग्राइंड करना है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो इफ यू हैव दिस पर्सपेक्टिव, मुझे लगता है आपको एग्जाम तो अभी लग रहा होगा यार एग्जाम तो ऐसे हो जाएगा. इज इट? डज इट मेक सम सेंस टू यू व्हाट आई एम सेइंग? डज इट मेक सम सेंस? आर यू विद मी ऑन दिस वन? Yes, sir. It actually makes Yes, sir. sense. See, Right, sir. Till Yes, yes, sir. till absolutely. last
one should work hard and ऐसा गीता में कहा गया है, कर्म कर फल की चिंता मत कर सर, हमारे हाथ में बस सर मेहनत है। Rest मेहनत is मेहनत आपको हार्डवर्क ऐसा करना है कि आपसे हार्डवर्किंग अभी कोई ना हो। उसके लिए क्या होता है ना, आपको अपनी जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको साइड करना है लाइफ में। कोई आपको कुछ झगड़ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आर्गुमेंट हो रही है, अवॉइड करो। Avoid anything. I'll tell you an example. There's a senior of mine who was going for his civil services interview. So we used to live together there only. तो उनका इंटरव्यू था एंड ही हैड बुक्ड अ कैब यूपीएससी भवन। यूपीएससी आपको धौलपुर हाउस, यू नो यूपीएससी, वहां जाने के लिए। वी आर लिविंग इन दिल्ली ओनली दैट टाइम। उनका इंटरव्यू था, तो कैब वाले के साथ कुछ ही वाज नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली। तो उन्होंने वहीं पे उसको पैसे दिए और वहीं पे उतर गए और ऑटो बुक करके चुपचाप चले गए विदाउट इवन सेइंग अ वर्ड। अब ऑटो वाले का तो कुछ नहीं जाता अगर वो उनसे झगड़ने में चले जाते, लेकिन वो जिंदगी भर का जो मेहनत थी वो उस एक इंटरव्यू के लिए, वो माइंडसेट खराब हो जाता और इंटरव्यू वुड हैव बीन गॉन कंप्लीटली, इजंट इट? तो अभी आगे 2 महीने में आपके पास ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे। नाउ ही सिलेक्टेड, ही सर्विंग, बट हैड ही आर्ग्यूड मे बी ही वुड हैव इंडल्ज्ड विद दैट कैब वाला, तो उनका माइंडसेट अफेक्ट हो जाता, माइंडसेट इंपैक्ट हो जाता उनका, और वो अपना परफॉर्मेंस, उनके 200 प्लस मार्क्स आए थे जो यूपीएससी में बहुत अच्छे होते हैं, अगर किसी को यूपीएससी का थोड़ा बहुत आइडिया है, 208 टू बी प्रिसाइज। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूंगा, आप सिर्फ आईबी का क्यों सोच रहे हो? व्हाई नॉट गो फॉर द स्काइज? व्हाई नॉट थिंक टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? आई एम जस्ट सेइंग, हैव ग्रेट विजन। I don't want the prime minister of the country. When I say that, I mean have a grand vision. Have a grand vision for yourself. जब आपकी पढ़ाई करना, मैं कहता हूं आपको पढ़ा कोई भी देगा, एनीवन कैन टीच यू, ठीक है, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप अपना माइंडसेट एलिवेट कर लोगे ना, पढ़ाई 2 मिनट का काम है। पढ़ाई क्या, किताब खोलना, पढ़ना ही तो है। जहां समझ नहीं आ रहा पूछ लिया किसी से, यही है ना, लगे रहो ना उसके साथ। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको सॉल्व करो, नहीं समझ आ रहा गाइडेंस लो, हेल्प लो, आस्क आउट। ठीक है, चलिए, विल टेक अनदर कपल ऑफ क्वेश्चंस। आई थिंक सेशन बहुत लंबा हो गया अभी हम एक दो क्वेश्चन और लेंगे, फिर हम वाइंड अप करते हैं इसको। Sir, will the mentorship include the test series also? I think these questions you can ask to the team, okay? I think, ठीक है, या आप लोग काफी How क्वेश्चंस to यहाँ पे contact the team? कमेंट्स में मेंशन कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए कमेंट्स पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। आप और एंड समवन कैन रीड दोस थिंग्स फॉर मी, या प्लीज। Sir, How can we contact the team? टीम आप टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप है ना, 2 ग्रुप्स बने होंगे, आप वहां पे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको पूरी डिटेल्स समझाएंगे, है ना? Okay, sir. Thank you, sir. हाँ, आप लेकिन क्लासेस आप कहीं पे भी ज्वाइन करिए, लेकिन क्लासेस के ज्वाइन करने का वेट मत कीजिए। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद की जरूरत है। यू हैव बीन यूपीएससी प्री, सम मार्क्स, आई वांट टू नो हाउ टू मैनेज 100 क्वेश्चंस इन 1 hour. See, you have to practice. You have to practice, no? That's the only way you can overcome this thing. Practice a lot. Not allowed? What is not allowed? Please ask your questions, no, clearly. I think someone else. Abhishek, you were asking a question? हाँ भैया, Abhishek Babu? मूंग की दाल है भैया। Sir, regarding the starting of the session, like when the classes will get started? Next week. Next week. Okay. Thank you, sir. Classes will start, yeah, classes will start next week. But don't wait for the classes to start. Please focus on अभी आप न्यूज़पेपर पढ़िए, रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़िए, एटलीस्ट 1 घंटा दीजिए, ठीक है? Okay, sir. Okay. और एक दूसरे से अगर आप इंटरेक्ट कर सकते हैं ग्रुप में, हेल्प ईच अदर आउट। देखिए, ऐसा नहीं होता, हम सोचते हैं हमने किसी को कुछ बता दिया तो मेरा हो जाएगा, ऐसा मेरा काम हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। नॉलेज ओनली स्प्रेड्स बाय शेयरिंग। हम जितना शेयर करेंगे उतना ये नॉलेज हमें और हमारा बढ़ता है, और हम और ज़्यादा अच्छे से बिल्कुल युद्ध जीते जाते हैं अभ्यास के दौरान, बिल्कुल।
एक और पंक्तियां हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो आपका युद्ध क्या है? क्या आप अपना प्रण, हैव यू लेफ्ट दैट बैटल? either you know die down fighting or you win it. There is no other thing. तो वो होना चाहिए कि वो मिल्खा सिंह का डायलॉग है ना, फट गई जी पर मजा आ गया, वो वाला आपको मजा आना चाहिए कि आप इतना मेहनत कर दो कि आपको लगे यार नहीं, दिस इज अमेजिंग, आई एम सेटिस्फाइड। आप देखोगे कुछ जब पढ़ते हो, आप कोई अच्छा काम करते हो, मजा आता है उसमें, सेटिस्फेक्शन होती है, वो सेटिस्फेक्शन के लिए काम करो, वर्क फॉर दैट सेटिस्फेक्शन दैट यू 8 घंटे रोज पढ़ोगे आप 10 दिन, आपका हाउ टू टैकल प्रोक्रास्टिनेशन। नाउ दिस इज बिकम ए मोटिवेशनल लेक्चर नाउ एंड लेस ऑफ एन IB strategy session. हाँ, lot of poetry is coming in. Anyways, procrastination देखिए, procrastination के लिए आप एक चीज आप कोशिश करिए, एक जो चीज मैं भी यूज करता था on a serious note. I think somebody, this fellow, I think. Okay. See, one thing that you need to understand, most important thing, कई बार हमारा ना आजकल सोशल मीडिया का टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं हम, है ना, फोन हमारे हाथ में होता है, हम रील्स देखते हैं, घंटे घंटे रील्स देखने लगेंगे, पता नहीं चलेगा। ये सबके साथ होता है, शायद मोदी जी के साथ भी होगा अगर उनके पास कभी टाइम हुआ कुछ देर का। तो एक और चीज फील करनी है, अपने आप को ना कम नहीं, ये नहीं समझना कि कोई बहुत बड़ा इंसान है तो वो पता नहीं क्या करता होगा, आप भी बहुत बड़े इंसान हो सब। अपने आप को बड़ा समझो, अपने आप को बड़ा समझना शुरू करो, अपने आप सब होता जाएगा। गेम दुनिया में सिर्फ माइंड की है, ये दुनिया माइंड से चल रही है, सब्जुगेट किया जाता है आपको, आपके माइंड को। अगर आपका माइंड लिबरेट हो गया तो फिर आप कोई भी चीज इस दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। ये समझ रहे हैं आप? सवाल क्या था वैसे आपका? Anyone can remind me of the question that was being asked? Sir, it's about procrastination, how to. Procrastination. Yes, yes. So you can do one thing to let go of the distractions. आप ना अपने फोन में एक टाइमर का इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप पढ़ते हैं ना, आप आधे घंटे का टाइमर लगा लीजिए और फोन को साइलेंट करके रख दीजिए साइड में। उस आधे घंटे में all hell can break loose, but you will not touch your phone or do anything unless something emergency is a different thing. ऐसा नहीं हो गया कि आग लग गई तो आप बोले नहीं मैंने पढ़ना है, वो नहीं करना है, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि उस आधे घंटे में आपने in those half an hour you have to focus on doing that thing. ऐसे आधे आधे घंटे के चंक्स आप बनाइए अपने डेली शेड्यूल में। आप मॉर्निंग शिफ्ट में आप सुबह बैठते हैं, wake up early, start at 9 o'clock, those who are studying full time, 9 से लेके 1 बजे तक का एक अपना शिफ्ट रखिए, लंच के पहले का। उसमें आधे आधे घंटे के 5 से 6 शिफ्ट रख लीजिए, आधा घंटा पढ़ लिया, फिर 5 से 10 मिनट ब्रेक ली, लेकिन वो 5 से 10 मिनट ही होनी चाहिए, ठीक है? फिर आधा घंटा लीजिए, फिर 5-10 मिनट की ब्रेक लीजिए। इससे क्या होगा, आप फ्रेश भी रहेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी भी हाई रहेगी। एंड ट्राई टू डॉक्यूमेंट योर स्टडिंग आवर्स। शुरुआत में जिसको कंसंट्रेशन और प्रोक्रास्टिनेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, शुरू में आप डॉक्यूमेंट कर लीजिए। Try to document it in a diary. Just write it. I studied from 9 a.m. to 9:30 a.m. and then I took a 5-minute break. It may sound very mundane, but believe me, it works. It works amazingly well. I'll tell you, when I was in 9th class, I remember this incident very vividly. There was an exam in a week, and I used this, technique. I devised that technique then only. उस टाइम पे मैंने ये टेक्निक डिवाइस की थी, and I scored 179.5 out of 180 that time. I remember because that stayed with me, and that is the technique that I've used in life over and over again. So try to give your mind small targets, small things. Okay? तो इस तरह से आप, मुझे लगता है आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? प्रोक्रास्टिनेशन का एक ही तरीका, शॉर्ट टर्म गोल्स रखो और अकाउंटेबिलिटी फिक्स रखो अपनी। मेक योरसेल्फ अकाउंटेबल, क्योंकि आप दिन में अपना जहां पढ़ते हैं एक चार्ट सा लगा लीजिए, वहां डेट, फॉर एग्जांपल अभी कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई, टुडे 16th of July, सो स्टार्ट फ्रॉम टुमारो 17th of July ऑनवर्ड्स, एक आज जाके जो सेशन के बाद एक चार्ट या एक पेपर चिपका लीजिए उसको अपनी वॉल पे,
जहाँ पे स्टडी टेबल के सामने, और उसमें डेट लिखिए 17, 18, 19, 20, 21, 31 तक, और उस दिन में कितने घंटे आपने पढ़ाई की है। वो जो आपने लिखना है ना 2-2 घंटे, आधा घंटा पढ़ लिया, वो वहीं पे लिखिए चार्ट, और एट द एंड ऑफ द डे टोटल कीजिए उसका। देखिए किसी दिन अगर वो 2 घंटे हुआ ना, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे अगर टाइम आए, आपको वो चुभेगी चीज, वो आप चाहोगे कि यार आज तो पढ़ाई नहीं हुई, आज मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, फिर आपको नेक्स्ट दिन उसको कॉम्पनसेट करने का मन करेगा, अगर आप सिंसेयर हो। कई बार होता है कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, इट इज ऑन दोज हार्ड डेज जब पढ़ने का मन नहीं करता है, तब भी अपने आप को पुश करना है। इवन इन दोज टाइम्स यू हैव टू पुश योरसेल्फ, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें हैं। बाकी आई थिंक आई टेक वन फाइनल क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप, जस्ट वन क्वेश्चन, एनीवन वांट्स टू आस्क, वी विल टेक दैट। आप लोग भी फिर डिनर कीजिए जाके। आई हैव वन मोर मीटिंग एट 10:30, आई थिंक आई टू, so I think there is a senior who is in outside of India in UK, so I have to have a chat with him, have a session with him. तो हमें 5 मिनट में सेशन कंक्लूड करना होगा, ठीक है। I'll give some rest to my throat as well, ठीक है। तो मेरे को एक सवाल और लूंगा मैं, one final question. Anyone wants to go ahead? Those preferably those who have not asked any question can ask this question. जिसने पहले सवाल नहीं पूछा है वो पूछ लीजिए, या कोई भी पूछ सकता है एक क्वेश्चन। In any otherwise, can anyone check टेलीग्राम ग्रुप पे? आई थिंक देयर मस्ट हैव बीन अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, उसमें से कोई क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड है? कैन एनीवन ऑफ यू चेक दैट सो दैट आई विल ट्राई टू एड्रेस दैट क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन दैट हैज बीन लेफ्ट अनआंसर्ड। कोई सवाल जो जिसका हम मैं नहीं वो टच हुआ है, ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स के लिए मदद हो जाए। कलर ब्लाइंडनेस वाला जो पूछ रहे हैं उसका, आई थिंक कलर ब्लाइंडनेस मे बी अ कंसर्न। Sir, what shall I do then? Shall I aim high only? Sorry? Sir, what shall I do then? But I don't know. I am in a deep dilemma, sir. That decision I leave it to you. That decision Sir, is yours. Meditate tonight. You will get your answer tomorrow morning. my father always say one thing only: aim high, and just aim high. Sir, matlab. So aim high. Even if you qualify the exam, nobody is forcing you to join it. First qualify, then we will talk. Once you qualify, Yes. after that we will discuss about not joining or joining. Na? Sir. Even qualifying this exam is not a cakewalk. Thank you, sir. है ना? तो आप पहले एग्जाम दीजिए, उसके बाद होगा नहीं होगा, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि ज्वाइन करना है। Sir, I want to ask a question. Yes, please. For those of who are not joining any batch or something, how shall they approach towards the exam? That I've already told you, na. So you just focus on completing your basic books and syllabus, and try to maintain a discipline, maintain a consistent discipline, because don't wait for the date of the exam to be released. Start today. Start focusing on doing all those basics. अपना रिविजन करो, बार बार रिवाइज करो, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो या सॉल्व करो, अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज को पहचानिए और उस पर वर्क कीजिए। स्वॉट एनालिसिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप फोकस करें कि कहाँ पे आपका लेक्यूनाज है, कहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। स्ट्रॉन्ग बेसिकली एरिया आईटी के ज्यादा टेस्ट तो मिलते नहीं है, एसएससी के ही मिलते हैं जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पे, तो वही see, the thing is, again you are not asking the right questions. The thing is, try to analyze the pattern of the examination. आप पॉलिटी अगर आपने पढ़ लिया, वो एसएससी में आएगा, यूपीएससी में आएगा, आईबीए में आएगा, सवाल तो वही रहेगा। अब केशवानंदा भारती केस किसके ऊपर है? Anyone can tell me what is the केशवानंदा भारती केस? कुछ तो पढ़ा होगा किसी ने। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के ऊपर है। हाँ, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आप जरूरी नहीं है आपको कि एसएससी में पूछेगा तो अलग आंसर दोगे, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना, और मैथ्स में परसेंटेजेस हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हैं, टाइम एंड डिस्टेंस है, वो सेम रहेगा। प्रैक्टिस कीजिए। अब क्वेश्चन कौन सा आएगा, नोबडी कैन प्रेडिक्ट दैट, है ना। आपने बस प्रैक्टिस करनी है, और ये इस चीज में मत जाइए क्वेश्चंस क्या आएंगे। आप अपना हार्मनी को स्ट्रेंथन कीजिए, स्ट्रेंथन योर ओन स्किल सेट, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। और रेगुलरली कंसिस्टेंटली मेहनत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, है ना। पूरा अपने आप को अकाउंटेबल होल्ड रखिए, और धीरे धीरे आप, मुझे लगता है अगर आप रेगुलर काम करेंगे तो
आपका अच्छा हो जाएगा, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। और एग्जाम कोई भी क्लियर करना मुश्किल नहीं, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना मुश्किल नहीं है, मेहनत करना जरूरी है। और एग्जाम क्वालिफाई करना भी हमारा मकसद नहीं होना चाहिए आपका, एग्जाम हो जाता है, ठीक है, अपने आप को एक प्रोसेस में किस तरह से चलना है, वो एक बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। So I think we'll wrap up the session here. We will. I'm sure I was able to answer most of your queries because it was difficult to individually address these queries. So I thought I'll have an interaction with you guys. So I hope you derived some value out of it, and you will stay true to yourself, and you will try to put your, you know, best foot forward. Try to work on your strengths and weaknesses, and try to become, a person who is, the organization should feel worthy. Be the energy of the room wherever you are. Be a sorted individual. Wherever you go to a chai wala, there also your presence should be like amazing. That person should feel like, what a guy, what a girl. So that kind of aura. And similarly, when you walk into an interview room, the interview panel should be, यार ये बच्चा कितना जबरदस्त है, मजा आ गया इससे बात करके। तो वो डेवलप कीजिए अपना ऑरा। Once you develop that aura, एग्जाम तो हो जाए, ठीक है। चलो, we'll wrap it up. I hope to see you all in IB colors, and for whatever you other exams you are preparing for, है ना, जो भी आप लाइफ में कर रहे हैं, I wish you all the very best, and always go for the skies. You may in the attempt fall down, but what is life without not a little bit of adventure, isn't it? So go for it. It is said that there is no difference between the guy who won and the guy who kept fighting till the very last. So either way, you are victorious. We'll leave it at that. Thank you. Thank you, sir. Have a good Thank you, have sir. a good day. Jai Hind. Jai Hind, everyone. Jai Hind, sir. Enjoy yourself.